So basically today we are going to start that is the synthetic fibers and plastics. Means in this chapter we will study about fibers. As we know, we wear clothes, we use clothes and many things that are made of fibers. Yes. And as the living organism is made up of the repeating unit that we call as cell, similarly other substances also made from such repeating units that we here call as monomers. Like polymer क्या होता है? Polymer बहुत सारे छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से, लाइक आपने चैन देखा होगा ना, चैन जो साइकिल वाली चैन आती है, प्लस जो लॉकिंग वगैरह के लिए चैन आती है ना, तो कुछ इस तरीके से वी हैव कर्व स्ट्रक्चर्स. यस, yes or no? So basically these are the units of that chain. Yes or no? And this is the polymer, and this unit is with that we call as monomeric unit. And बहुत सारे monomeric unit मिलकर क्या बनाता है? पॉलीमर बनाता है. क्लियर है? और इसी पॉलीमेरिक फॉर्म का हम लोग बात करेंगे कभी जब हम लोग बात करेंगे सेल की, और सेल के अंदर हम लोग जेनेटिक मटेरियल की बात करेंगे. जेनेटिक मटेरियल के थ्रू क्या होता है? कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है. क्लियर? सो इन दिस the synthetic fibers, basically as we know the cloth is used by each and everyone. Yes, either they are from animal source, either they are from plant source. Yes or no? And those clothes are made of the repeating unit that we call as fabrics. Yes or no? And the fabrics are made from fibers. बहुत सारे फाइबर्स मिलकर क्या बनाता है? फैब्रिक्स बनाता है. और उस फैब्रिक से हम लोग क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं. Am I right? Yes. And that fibers that may be obtained from natural method or the artificial mode, from natural source or the artificial source, like from plants and animals. Like there are some chemical synthetics. There are chemical fibers. Like we have plastics. Like we have many more things. Is it clear? Yes. Yes. Yes, sir. So first of all, here synthetic means man-made. Man-made fibers. Clear? So now we gonna talking about clothes. So clothes are made of, cloth किससे बनते हैं बताइए? Fabric से. Fabric से बनते. And the fabrics are made of fibers. Fibers. And fibers are obtained from. Tell me. Either it may be from natural or man-made, or artificial source. Artificial source by the artificial process or the natural process. Yes or no? Artificial source means जिससे बनते हैं. Is it clear? Can you name such kind of natural fiber? Jute. Hello? cotton, And many what about others? Cotton, silk, jute. Like jute bag, like jute plants, उससे भी fibers बनते हैं. Yes or no? Yes. yes, ये तो हो गया आपको Yes, sir. ये तो कुछ हो गया आपके पास नेचुरल मोड से. So we have other some kind of such kind of fibers, fabrics that are used to make some household products. Yes or no? Like we have handle of cooker, like we have parachute, and like we have in clothes, like in what I can say, the raincoat, the shoelace. All these are somehow made of fibers and fabrics. Is it clear? Yes, sir. Hello. Yes, sir. So first of all, we will define here synthetic fibers. The definition. First of all, write synthetic fibers. Synthetic
fibers. We also call it as man-made fibers. Yes or no? Yes, sir. Yes, The sir. fibers made by human beings, is called synthetic fibers. Synthetic fibers or man-made fibers. Is it clear? Yes. Man-made fibers. Done? Yes, sir. Yes, sir. If someone asks you about what do you mean by fiber, can anyone of you can explain? हेलो, फाइबर्स क्या होता है? These are the thread-like structure from which fabrics are made, which further makes clothes or many other products. Yes? So write down the next topic, that is fibers. Sir, fibers are some strand-like materials. Yeah, thread-like structure or strand-like material. So from which fabrics are made, and from fabrics clothes are made, or nets are made, or ropes are made, shirt, t-shirt, whatever you can say. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Next we have fibers. The thread-like structure, or strands, which is strong, and flexible, means it will have some certain kind of thin or thread-like or strand-like structure. इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि रॉड की तरह ये स्ट्रॉन्ग है जिससे हम इजीली वोवन नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि थ्रेड की तरह उसको हम लोग वोवन कर सकते हैं, बुन सकते हैं, कपड़े बना सकते हैं या कोई अदर चीज बना सकते हैं। क्लियर? और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, कैसा ना हो कि हम मान लिया अगर हम शर्ट पहने या टी शर्ट पहन रहे हैं कि पहनते पहनते टी शर्ट फट गया, आगे ना, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इट शुड बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज flexible enough for that kind of fibers, so that it can hold this kind of when we are going to use. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. To make clothes, nets, in next we may have ropes, रस्सी इसको बोलते हैं, shirts, clear, sarees, tell me, window curtains, etc. It's called, हाँ, मैट बोल सकते हैं, टॉवेल्स बोल सकते हैं, बैग्स बोल सकते हैं, पैराशूट बोल सकते हैं। क्लियर? These are the is called fibers. Should I move to next? Yes. Wait a minute. Yes, sir. Okay, do it first.
Yes, sir. Done. It is Anushka. Done. Yes. That we call as fibers. तो फाइबर्स आपके पास दो टाइप का होगा, नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। क्लियर है? Yes, sir. So on the basis of source, we have on the basis of, So natural and synthetic and or we can man-made. say man-made. So on the basis of source, fibers are two types. Fibers are two types. Is there any difficulty? No, sir. Natural fiber. In next we will have synthetic fiber, जो कि आपके चैप्टर का नाम है। बोलो। Yes, sir. Here it is man-made source. It is man-made. It is from man-made source. Man-made source, and this will be from natural source. Clear? Yes. कोई दिक्कत? No. Sir. किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, sir. विराज, you are too late. सर आई एम इन हैदराबाद, सो यहाँ पे बहुत इंटरनेट इश्यूज है सर। Okay. Do you have written the last slide? Yes, sir. Should I move to next? यस सर। वैसे Yes, sir. वैसे on the basis of source we have decided that कि fibers are two types, natural and synthetic. Clear? But we may also categorize the third kind of fibers that may be called as semi-synthetic. Clear? Yes. Getting my point? तो Yes. आप स्टार डाल करके एक पॉइंट लिख लेना। इसमें यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? टू टाइप्स का, नेचुरल एंड सिंथेटिक। क्लियर? और इसी सिंथेटिक हम लोग मैनमेड फाइबर भी बोलते हैं। तो तीसरा आप लिखिएगा इसमें क्या? सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक। क्लियर? नाउ वी गोना, क्या मतलब इसका? कि समवॉट इट इज मैन मेड। क्लियर? मीन्स टू से कि इसमें कुछ ना कुछ नेचुरल फाइबर्स भी अवेलेबल होगी। मीन्स द मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर्स आर नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर्स, लाइक रेयन, और रेयन को हम लोग विस्कोस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? रेयन को क्या बोलते हैं? विस्कोस भी बोलते हैं। Should I move to next? Yes. Yes, sir. जैसे आपने Yes, ग्लूकोज का नाम सुना होगा। You have heard the name of glycogen. Yes, sir. Everyone, you have also heard a name that is starch. These are made of many smaller units. That is the glucose. Clear? और बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाता है? एक बहुत सारा लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाता है, दैट वी कॉल एज ग्लाइकोजन इन केस ऑफ एनिमल्स एंड स्टार्च इन केस ऑफ प्लांट। क्लियर? तो ऐसे ही Yes, बहुत sir. सारा मोनोमेरिक यूनिट जब एक साथ ज्वाइंट हो जाए, ऐसे करके एक 1 by 1 ज्वाइंट हो जाए, ऐसे करके ज्वाइंट हो गए,
नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट कर ज्वाइन होते होते इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉलीमर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ पॉलीमर्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? पॉलीमर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर द लार्ज स्ट्रक्चर molecules which are composed of many smaller units and the smaller units are known as monomers. क्लियर है? पोली मीन्स बहुत सारे, मर मीन्स यूनिट, रिपीटिंग यूनिट बहुत सारे होते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमेरिक पॉलीमर बोलते हैं। और ये ऐसे ही छोटे छोटे यूनिट्स को मिलने के ही प्रोसेस को, पॉलीमर बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन बोलते हैं। जैसे आपके पास क्या है? सेल्यूलोज है जो कि प्लांट में मिलता है, यस और नो। जैसे स्टार्च है, ये प्लांट में मिलता है। जैसे ग्लाइकोजन है, ये एनिमल में मिलता है। जो स्टोर्ड फूड होती है किसमें? अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। stored food in different organism we named as we call it from different name. Clear? जैसे अगर एनिमल्स की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें, जो whatever food you are eating, all foods are not going to be used up. जो अनयूज्ड फूड है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकमिंग फ्यूचर में 1 दिन 2 दिन जब जरूरत पड़ेगी तब ये इस्तेमाल होगा। क्लियर है? तो they may be convert, they have to be converted into unusable form, that is the glycogen. ग्लाइकोजन क्या है? पॉलीमर है। उसी तरीके से जो अनयूज्ड फूड है प्लांट्स में, that we call them as starch. सर यहाँ पे तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पर बायो की बात क्यों आ रही है? बायो की बात इसलिए आ रही है क्योंकि वो पॉलीमर है। अरे क्या है? पॉलीमर है। बात समझ में आ रही क्या? डन? You have to speak with the help of your mouth. Yes. Nature has given you mouth. Yes. Yes, that's fine. Very good style. Yes. हाँ, तो पहला बात करेंगे फाइबर्स। कौन सा? नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर। जहां पर जरा से भी दिक्कत हो, जरा से भी डाउट हो, बेझिझक, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन, you may have to ask, you must have to be asked. Is it clear? So the fibers, can anyone of you tell me what about natural fibers? अच्छे से explain कीजिए with Sir, example. natural fibers are from obtained plants from and animals or any plant source. हाँ, आप में से सब के सब एक साथ बोल सकते हैं, हम सबकी आवाज एक बार में सुन सकते हैं। I have ability to listen all the sounds that is coming from my student side. ठीक है? बस आपको डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए बोलने के दौरान, हम सबकी आवाज सुन सकते हैं। कौन गलत बोलेगा वो भी हम उसको सेपरेट, उसको फिल्टर कर सकते हैं ना। मेरे कान में बहुत सारे फिल्टर लगे होते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन सा गलत बोल रहा है। ठीक है ना? हाँ, तो हर्षा, you can tell me. They are obtained from plant and animal sources. For example, Cotton, silk, wool, jute, etc. okay. Anushka, can you? Natural fibers come from animals or plants. Example, Cotton, jute, silk. Mayuri, is it right? Viraj? Yes, sir. What other have said, is it right? Yes, sir. हाँ, जब सही बात है तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। The fibers obtained from plants and animals. Plants and animals are known as natural fiber. ठीक है? और इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, these are short fiber.
These are short fiber. Sir, I have a doubt. Yes, yes, please. Sir, why are these called short fibers? बेसिकली जब इसका फॉर्मेशन होती है, दे आर नॉट लॉन्ग एनफ, मीन्स अप टू सर्टेन लेंथ तक ही इसको बनाया जाता है। क्लियर? जिसे रॉक्स वगैरह बनाते हैं तो वो सिंथेटिक मोड में बनता है, तो बहुत लंबी बनती है। क्लियर है? क्योंकि जब इसको बनाएंगे ना तो फिर ये इट में इंडल्ज, ये मतलब आपस में वो फिर खराब भी हो सकता है। अप टू सर्टेन लेंथ वी कैन से अराउंड 1 किलोमीटर तक ही बनाते हैं। लाइक जो आप इन जो वोवन के फैक्ट्रीज होते हैं जहाँ पर कपड़े बनते हैं, जो उनके यार्न्स बनते हैं ना, जो फाइबर्स बनते हैं, जब इनको राउंड अप किया जाता है तो अप टू सर्टेन लेंथ तक इसको राउंड अप किया जाता है। क्लियर है? फिर फर्दर उसको फिर फैब्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फर्दर उनको क्लोथ्स में कन्वर्ट या जो यूजेबल प्रोडक्ट उसमें कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी लॉन्गेविटी के बेस पे और इनका, ताकि ये खराब ना हो जाए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Is sir. it right? We call it as short fibers. एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे कि आप लोगों ने बताया, वुल, वी हैव कॉटन, और ये इनके जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, समझ में आ रही है? ये वैसे ही बहुत छोटा है, तो ज्यादा लंबा तक इसको हम बना नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल और नॉट इजीली woven or fine or not cannot be easily made into long fibers. That's why we call it as, क्योंकि ये छोटे बनते ही हैं, that's why we call it that short fibers. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. जिसका डाउट का क्लियर हो गया, तो क्या हो गया आपके पास? वुल, कॉटन, इन नेक्स्ट वी हैव जूट, हाँ, अप टू लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर, इसलिए शॉर्ट बोलते हैं। क्लियर? सिल्क क्लियर है? Yes. Yes, sir. मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ हम लोग नेचुरल फाइबर्स की बात करेंगे और उनके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। क्लियर? जैसे एक तरफ नेचुरल फाइबर है, नेचुरल फाइबर है, दूसरी तरफ इसका सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो मैं फाइबर का नाम लिखूंगा, मैं फाइबर का नाम लिखूंगा, आपका सोर्स बताना है, और जिसका नाम लूंगा उसी को बताना है। कोई दिक्कत? हाँ या ना? बोलो। सर आपने जो बोला वो रिपीट Yes, sir. I have said that now we gonna study about the fibers and their sources. तो एक तरफ एक कॉलम में मैंने लिखा नेचुरल फाइबर, बाकी वो किस सोर्स से बिलोंग करता है, मीन्स कहाँ से वो उसको हम लेते हैं, कहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं फाइबर का नाम लिखूंगा और जिसका नाम लूंगा उसको बताना है कि इनका सोर्स क्या है। जैसे मैंने बोला कॉटन, कोई नहीं बोलेगा अनलेस एंड अनलेस इसका नाम ना लिया जाए। विहान आप बताइए, कॉटन का सोर्स क्या है? So from plants. ये कैसा आंसर है? So from cotton plant. फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। यस? Yes. हाँ, इट इज फ्रॉम, आपने एक जनरल टर्म बोल दिया प्लांट्स, ठीक है ना? फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। The cotton balls. हाँ, कॉटन बॉल्स बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये बनता है ना एक फ्रूट के अंदर, जैसे मैंगो होता है ना पल्प वाला पार्ट, तो वैसे ही फ्रूट के अंदर क्या होती है, उसके कॉटन्स होते हैं। जब अच्छे से ये मैच्योर हो चुके होते हैं फिर वो फूल जाते हैं। तो जैसे इसको खोलोगे ऐसा लगेगा कि अंदर जबरदस्ती उसको ठूस ठूस के भर के रखा गया था। क्लियर है? फिर उसको अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसको फाइबर्स को सेपरेट किया जाता है। तो फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट।
किसी ने कुछ और नाम बोला उसका, क्या नाम था उसका? Cotton balls. कॉटन बॉल, ये वाला? No. यस, BOLS. BOLS, Balls. पक्का? Yes. हाँ, यहाँ पर इन इन प्लांट्स में जब आपने नाम लिया कॉटन बॉल्स का, यहाँ पर एक बीमारी होती है, इंसान में नहीं, इन्हीं कॉटन में होता क्या है ना कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, अगर उस फ्रूट के वाल को, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फ्रूट वाल, दिस इज द फ्रूट वाल, अगर इन फ्रूट वाल के अगर वाल्स को ही अगर छेद कर दिया जाए तो क्या इसके अंदर का कॉटन जो है वो सही हालत में रहेगा, कॉटन बन पाएगा? No, Yes, sir. sir. नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ऐसे वर्म्स को, ऐसे इंसेक्ट को बोलते हैं कॉटन बॉल वर्म, जो कि कॉटन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर? कॉटन्स को डिस्ट्रॉय करता है। क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट आपके पास है लाइनेन। लाइनेन किससे बनता है? नाम मयूरी आप बताइए। नो आइडिया, टफ है। जो कुछ प्लांट होते हैं उनको बोलते हैं फ्लैक्स प्लांट, उसके स्टेम से बनाया जाता है, स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? Yes. Yes, very good attitude. Yes. Next we have hemp. अनुष्का, इसमें आप बताइए हेम्प किससे बनता है? तो सही पता, मैंने पहली बार ही नाम सुना है। अच्छा, पहली बार नाम सुना है। आपने एक प्लांट का नाम सुना होगा, मैरी जुआना। मैरी जुआना, उसके स्टेम से बनाया जाता है। क्लियर? Yes. मैरी जुआना। नेक्स्ट आपके पास है जूट। हर्षा कौर, आप बताइए जूट किससे बनता है? Sir, stem of jute plant. ये सबसे आसान सा आंसर, ये आप ही के नसीब में था क्या? स्टेम ऑफ जूट प्लांट। क्या आपको पता है इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे इसको निकाला जाता है? जूट के प्लांट्स को पानी के अंदर कुछ टाइम तक सड़ाया जाता है। दे आर मेड टू बी रॉटन। क्लियर? विद द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, जो उसके ऊपर के सेलुलोज होते हैं ना, जो ऊपर के जो लेयर होते हैं उनको हटा दिया जाता है, फिर जो अंदर जो फाइबर्स होते हैं उनको फिर अलग अलग बारीक से, मतलब वो बैक्टीरिया उस पर काम करता है। ठीक है? और फिर जब वो ऐसा जब सड़ने लगता है, जब उसके अंदर से बू आने लगती है, बदबू आने लगती है, फिर कुछ वर्कर्स होते हैं, फिर उसको पीट पीट के कभी आपको टाइम में मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, फिर अच्छे से पीट के उन फाइबर्स को अलग करके फिर उसके अंदर का जो स्टेम का अंदर का पार्ट होता है उसको निकाल देते हैं, और फिर जो जूट के जो मेन फाइबर है उनको अलग करके सुखा करके फिर फर्दर मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। क्लियर? हाँ विहान, Yes. Yes, sir. एवरीथिंग ओके? Yes, sir. शुड आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, sir. Yes, you can. In next we have wool. तो इसका मुझे आंसर बताएंगी विराज। वुल कहाँ से आता Sir, है? from sheep. Sheep hair. So basically we can call it as soft hair of sheep. So we can call Only- it fleece. Yeah, We can call it as fleece. please. Yes. Okay, that is fine. So soft hair of sheep, or not only sheep, we have also got somewhat rabbit से भी करते हैं,
और कैमल से भी होता है ना? सर याक। हाँ, याक से भी होता है, कैमल से भी होता है। ठीक है, रैबिट, कैमल, वाई ए के याक होता है ना, ये बचपन में हमने पढ़ा था। याक बहुत बड़ा सा होता है, बड़ा, मतलब उसका जो बाल वगैरह से मतलब बड़ा बड़ा होता है। वो बोलते हैं ना कि वाई फॉर याक, जिसे बोलते हैं ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। कश्मीर में होता है। हाँ, इन नेक्स्ट, हाँ, कुछ बच्चे ऐसा नाउ डेज कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, ए फॉर समवन टेल मी बेटा, ए टू जेड अलग अलग नाम से बताइए, कि ए टू लेकर ए से लेकर जेड तक सुनाइए। तो बच्चों ने बच्चे कहने लगे कि ए फॉर एक एप्पल, क्या क्या है, कैसे वो, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी एक एप्पल, बी से बड़ा एप्पल, सी से छोटा एप्पल। हाँ, तो वो वाले कहानी होंगे ना। इन नेक्स्ट वी हैव सिल्क। सिल्क कहाँ से आता है? जो हाँ, मयूरी आप बताइए। सिल्क वर्म से आता है। किससे? सिल्क वर्म से आता है। हाँ, सिल्क वर्म से आता है, यहाँ पे सिल्क है ही, लेकिन बेसिकली उसके कोकोन से आते हैं, उसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उससे बनाया जाता है। क्लियर? उनको बोलते हैं कोकोन्स ऑफ सिल्क वर्म। और सिल्क वर्म के कल्चरिंग को क्या बोलते हैं? सिल्क वर्म के कल्टीवेशन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और ये सेरीकल्चर कहाँ, खेत में होती है या प्लांट्स में होती है? प्लांट, कौन से The प्लांट plants में? will. मलबरी। कौन से? मलबरी So प्लांट्स they के। eat mulberry leaves and then they produce lava. हाँ, कुछ वो जो लीफ होता है कुछ इस तरीके से होता है क्या, बताइए बताइए। हाँ, ये बहुत सिंपल आसान सा शेप है, इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा नंबर पे, आर्टिफिशियल फाइबर। ये था आपके पास नेचुरल फाइबर के बारे में। अरे बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Synthetic fibers, or we can call it as man-made or human-made fibers. Okay, man-made fibers. अरे सर, नाम से मालूम चलता है कि सर ये इट इज मेड फ्रॉम ह्यूमन एफर्ट। इज इट क्लियर? सो वी कैन से द fibers synthesized or prepared by human beings are known as synthetic fiber. Clear? Yes, sir. सिंथेटिक फाइबर्स को हम लोग लॉन्ग फाइबर्स बोलते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज लॉन्गर फिलामेंट फाइबर्स या कंटिन्यूअस फिलामेंट फाइबर्स बोलते हैं। क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes. यस। एग्जाम्पल में क्या होगा बताइए। नायलॉन, नेक्स्ट बताइए। रेयन। पॉलीस्टर मतलब क्या? बहुत सारे A lot of glucose. बहुत सारे स्टर से मिलके बना होता है। स्टर एक केमिकल्स है, आप आगे चल के केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे स्टर से मिलके क्या बनाता है? पॉलीस्टर। तो मोनोमेरिक यूनिट कौन होगा यहाँ पर? स्टर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव एक्राइलिक। यस। यस। नेक्स्ट वी हैव स्पेंडेक्स। बस ये नाम जानना है, जाके डिटेल में नहीं जानना है ना। ये कुछ एग्जांपल हो गया, एक्राइलिक, नायलॉन, पॉलिस्टर। तो आपको नाम से मालूम चलता है कि सर ये सिंथेटिक है, ये मैनमेड है, ये नेचुरल है। इज इट राइट? यस। Yes, sir. एक नोट डाल के पॉइंट लिखेगा
नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा। सर नोट पे क्या लिखना है, तो बेटा मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। All the synthetic fibers that are made from or prepared from raw material of petroleum products or petroleum in origin means underground, that is the petroleums na, clear? Those are called as petrochemicals. Is it clear to everyone, yes or no? सर आपने जो बोला रिपीट कर सकते हैं? Okay, I said all synthetic fibers that are prepared or made from raw material using petroleum in origin or the petroleum products, those kind of synthetic fiber are considered as or called as petrochemicals. Now clear? Yes. All synthetic fibers are prepared from raw material of petroleum origin called as is called, बताइए, Petrochemical. petrochemicals. पेट्रो बोलते हैं ना, पेट्रोशियो, तो बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। इज इट राइट? Yes. यस, दैट्स फाइन। हाँ जी, should I move to next? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा बचा अपने पास, तीसरा क्या था? Sir, semi-synthetic fibers. फाइन, सेमी सिंथेटिक fibers. What are these? Anyone? They are also Fibers that are natural made and of also- both some natural and also some synthetic fibers are known as हाँ. So semi-synthetic can we fibers. say the modified natural fibers? Yes. Yes. Yes, Yes. sir. Can you tell us, sir? हाँ सर, So can we tell it as the mixture of both natural and synthetic Yeah. fibers? क्योंकि होता है ये नेचुरल, लेकिन इसको मॉडिफाई करके हम लोग आर्टिफिशियली बनाते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। लेकिन फाइनली होता है क्या है, सिंथेटिक है ना, ह्यूमन एफर्ट से बनता है ना, ह्यूमन मेड होता है ना, इसलिए बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। कंप्लीटली प्योरली सिंथेटिक नहीं है। प्योरली सिंथेटिक कौन है? पॉलिएस्टर है, एक्रेलिक है और नायलॉन है, ये ज्यादा प्योरली सिंथेटिक। क्लियर? मॉडिफाइड नेचुरल फाइबर। क्लियर? एग्जाम्पल है आपके पास रेयोन और विस्कोस। डन? So from which Huh? natural material they are from? यस बेटा, So from which Yeah. natural? इनकमिंग लेक्चर्स में आपको ये आएगा डिटेल से, वहां पे लोग बात करेंगे, ठीक है। Okay. सबका हो गया? Yes, sir, done. No, sir, wait. Yes, sir. डू इट फास्ट। Yes, sir. Done. Sir, हाँ सर,
The rayon is like it is prepared from cellulose and which comes from cotton and wood and other plant. या दैट इज समवट जो हम लोग बात कर रहे थे अभी जूट के बारे में ना, तो समवट जूट रिलेटेड सब्सटेंस ही होती है, लेकिन जूट नहीं होती है, क्योंकि जूट में भी क्या होता है, सेलुलोज होता है। यहाँ पर क्या होता है, समवट सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर को रीजनरेट किया जाता है और ये आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक बोलते हैं। ठीक है, इट इज सेलुलोज लाइक मटेरियल और वी कैन से इट इज मेड फ्रॉम सेलुलोज, बट नॉट एग्जैक्टली सेलुलोज एज द नेचुरल सेलुलोज की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, Okay, sir. हाँ। So in next we have the synthetic fibers that are completely made by humans. They are used to make clothes, yes or no, and many more other household products. So we have in two category. One will be purely synthetic, other will be semi-synthetic. Clear? तो सेमी सिंथेटिक में जैसे क्या आता है, रेयन आता है, ये नेचुरल पॉलीमर से बनता है एज अ स्टार्टिंग मटेरियल। शुरुआत में क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर दैट इज सेलुलोज, फिर बाद में उसका बहुत सारा मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। क्लियर है? वहीं पर अगर प्योरली सिंथेटिक फाइबर की बात कीजिएगा, दे मेड फ्रॉम केमिकल्स, तो केमिकल्स इज नॉट ए नेचुरल सोर्स। इज इट क्लियर? ये केमिकल से बन रहा है, that's why we completely call it as purely synthetic. Like we have polyester, we have nylons, we have acrylic, which are purely synthetic fibers. Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Next topic is rayon. Next topic is rayon. Somewhat इसकी प्रॉपर्टी सिल्क जैसी होती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, Sir, it आर्टिफिशियल is also called this artificial or synthetic silk. या आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क। क्लियर? अरे किसी को दिक्कत है बताओ। No, sir. हाँ, so we can say rayon is the first So it is the first man-made fiber. yeah, first man-made fiber, फर्स्ट मैन-मेड फाइबर, इसलिए तो हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। अरे बोलो, नेक्स्ट Yes. पॉइंट लिखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ, मींस जो आपका सवाल था किससे बना होता है, तो कंपोज्ड ऑफ रीजनरेटेड सेल्यूलोज, रीजनरेटेड सेल्यूलोज। क्लियर है? जो कि ग्रीन प्लांट्स के पार्ट होते हैं, आगे ना, और सेल्यूलोज तो प्लांट्स में ही मिलता है। एनिमल्स में क्या सेल्यूलोज मिलता है? No, sir. नो, तो नहीं मिलता। ओके, इसीलिए द आर्टिफिशियल सिल्क मेड फ्रॉम सेलुलोज वी कॉल इट एज रेयन, क्योंकि रेयन की प्रॉपर्टी सिल्क जैसी होती है, लाइक इन अपीयरेंस, टेक्सचर। तो मतलब ये हुआ ना कि अगर सिल्क अगर महंगा हो रहा है, इफ इट इज कॉस्टली, तो वी कैन रिप्लेस इट विथ रेयन। सो वी कैन से रेयन इज द अल्टरनेटिव ऑफ सिल्क, क्योंकि वही कम दाम में, कम रेट में, कम कॉस्ट में सिल्क जैसी प्रॉपर्टी देती है। लाइक अगर आप फोन खरीदते हो, फोन की फीचर्स को देखते हो, हाँ कि ना, तो कोई फोन महंगा आता है, लाइक आईफोन 13, आप आजकल में आप लोगों को शौक वगैरह होगा आईफोन का, है कि नहीं? तो या क्या पता मोबाइल चलाने का मौका मिलता है, नहीं मिलता है, यू कैन बेटर नो अबाउट दिस। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हो, या आप नहीं, कोई और देखता है कि अगर आईफोन 13 का फीचर्स कोई कम दाम वाले मोबाइल में मिल रहा है, तो यू विल प्रीफर दैट मोबाइल ना, कि पैसा भी बच गया, सेम फीचर्स भी मिल रहा है, सेम लुक भी मिल रहा है। अरे हाँ कि ना? Yes. हाँ सर। अरे Yes, बोलो sir. यार, कोई दिक्कत है, हाँ या ना? No, sir. No, sir. हाँ, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, रेयन रिजेंबल्स मीन्स एक जैसा,
resembles in appearance. If one question is being asked to you that why we consider rayon as artificial silk, what will be the answer? Rayon. Why? Sir, can you repeat the question? Why rayon is also called as artificial silk? Sir, rayon is called as artificial silk because it resembles like in appearance like the silk only. ओके, टेक्सचर में ऐसा ही होगा, क्वालिटी में कुछ वैसे ही होगा, यस और नो? इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। कोई दिक्कत? But हाँ, it sir. is not silk, right? नो, नॉट कंप्लीटली नॉट सिल्क, इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं क्योंकि सिल्क जैसा दिखता है। जैसे मयूरी जैसा कोई और हमें दिखेगा तो बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे इसको? कॉपी ऑफ मयूरी। क्या? क्लोन ऑफ मयूरी। हाँ, या आर्टिफिशियल मयूरी, ये सुन लो, ये क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल नहीं बोल सकते क्योंकि नेचुरली होगा ना, वो दूसरा जो मयूरी होगा वो नेचुरली होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हम शक्ल बोलते हैं ना, जुड़वा, ट्विंस, द ट्विंस ऑफ मयूरी, यस और नो? डुप्लीकेट? नो बेटा, दोनों ही ओरिजिनल होते हैं तो डुप्लीकेट नहीं हो सकता ना। हाँ मयूरी, क्लियर है? सो रेयन रिजेंबल्स इन अपीयरेंस, टेक्सचर, ठीक है, शाइनिंग में वैसे ही होगा। कोई दिक्कत? बोलिए। No. अपीयरेंस, टेक्सचर हो गया, शाइन हो गया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सर, दैट्स व्हाई। यस बेटा। सर, luminosity. व्हाट डज इट मीन? सर, that means shine only. इसमें लिखा था शाइन। Yes, sir. हाँ, तो अच्छा, आप उसका अल्टरनेट वर्ड बता रहे थे। दैट्स फाइन, थैंक यू। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? Artificial silk. Artificial silk. आर्टिफिशियल सिल्क। क्लास में जो जितना इन्वॉल्व रहेगा वो उसके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा। मीन्स ऑलवेज ट्राई टू बी इंटरेक्टेड विद योर टीचर, यू विल बी ऑन द फ्लो। अब भावना में बह जाएंगे, आपको इसी भावना में सारी चीज याद हो जाएगी। अरे हाँ बोलो। Yes. हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़ो। Yes, sir. Yes. डन एवरीवन? Yes, sir. Done. अनुष्का, डू यू? Yes, sir, done. विहान, you are Yes, not in the sir. class? Sir, I am. Yes, you are. So now we're gonna study about the source of rayon. तो somewhat it is made, जो उसका initial starting material लेते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? वुड पल्प बोलते हैं। किससे बनाते हैं इसको? वुड पल्प से। So rayon is obtained from, सर, वो रेयन में सर आपने रे ही लिखा है, ऑन नहीं लिखा है। अच्छा ये रे ही लिखा है। हाँ, रे मतलब रे होता है ना कि ज्यादा लाइन ऑफ व्हाट आई कैन से कमिंग फ्रॉम द सन रे, Yes, दैट sir. इज द रे। हाँ, तो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प, नेचुरल रिसोर्स, दैट इज वुड पल्प, नेचुरल रिसोर्स, and natural source. Sir, I want to ask that rayon or viscose are two different things or the same thing? उसी को हम लोग ऐसा बोलते हैं, रेयन को ही, कुछ केमिकल नेचर की वजह से, आगे आएगा उसके बारे में। सो रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, दैट इज वुड पल्प। क्लियर? जो आपका डाउट्स है ना वो Yes, sir. जैसे अभी किसी का डाउट था कि सर रेयन किससे बनता है, तो आगे आ गया ना, आगे ना, तो वैसे आपका जो भी डाउट्स है वो इनकमिंग टाइम पे वो आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो डाउट्स आते हैं, वो सारा एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। इज इट क्लियर? Yes, sir.
Yes, sir. Yes. विस्कोस इसलिए बोलते हैं कि जो यूरोप वगैरह में जिस प्रोसेस को बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विस्कोस प्रोसेस, एंड द रेयन दैट इज ऑब्टेन्ड इन यूरोप, तो हम लोग यूरोप में इसको विस्कोस बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर समवॉट काइंड ऑफ विस्कोस पल्प है, तो विस्कोसिटी होगी मतलब चिपचिपापन, फिर उसको फाइबर्स में कन्वर्ट किया जाता है, क्लियर है, और फिर वो फाइबर से फैब्रिक देन फिर सिल्क टाइप क्लोथ बनाया जाता है। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, sir. समझ में नहीं है? दिक्कत है? Sir, दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। Sir, how is wood pulp made? वुड पल्प, लकड़ी जानते हैं, लकड़ी, वुड, Yes, sir. तो जो उससे केमिकल रिलीज होती है, जब किसी पेड़ को आप काटेंगे, कभी अपने पेड़ से कुछ लिक्विड रिलीज होते हुए देखा है, या कभी काटने से या फिर कुछ Yes, sir. सा निकलता है। हाँ, Yes, जो sir, वुड देखा से है। वो जो लिक्विड जो निकलता है दैट इज द वुड पल्प। Okay, sir. पल्प मींस लिक्विड दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वुड दैट वी कॉल एज, जब किसी, जैसे मान लिया आपका बॉडी में कट लगेगी तो ब्लीडिंग तो आएगी ना, तो आपकी बॉडी के वो पल्प हो गया, मतलब पल्प है नहीं, वो विल हैव ब्लड, लेकिन वैसे प्लांट में जो लिक्विड होती है उसको क्या बोलते हैं? वुड पल्प बोलते हैं। इज इट सर क्लियर? मुझे कुछ हाँ पूछना सर, था। हाँ पूछिए। सर ये वही वुड पल्प है जिससे पेपर बनाया जाता है? हाँ हाँ, ओके सर। ओके। वुड पल्प तो वुड पल्प होता है ना, आप चाहे उसे पेपर बनाओ या आप आर्टिफिशियल सिल्क बनाओ। इज इट क्लियर? क्योंकि है तो नेचुरल सोर्स। अरे बोलो। ओके सर। Yes. Yes. यस, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लियर? Yes, sir.